Hello, dear students. Welcome to the today's session. Today we are starting a new chapter in social science. We are starting economics, chapter 3, poverty as challenge. Okay, so this is the chapter that we are starting. I would be just giving you a brief introduction to the chapter. I hope it would be clear to you, and then further we will be discussing the chapter. Now try to understand what does the chapter talk about, what actually does it mean. Okay, so children, what we are understanding here is a biggest challenge that people face in India is faced by the people in India. बहुत सारी problems है. We have got many problems, which is also called as the multi-dimensional problems. We have discussed the examples. So this chapter will discuss about the ways in which poverty is existing in India and is one of the biggest challenges for Indian people and the government. Okay, now what happens is that children, poverty, lot of measures are taken by government to remove this poverty, but still at some places we find that government is unable to solve the poverty problem of the Indians. Now when we understand this concept of poverty, तो सबसे पहले what we need to understand is, which we will be discussing in the chapter, causes. The major thing that we will be understanding is the causes of the poverty. उसके बाद जब हमको कॉज पता चल जाता है, जब हमको पता चल जाता है कि आदमी की बीमारी क्या है, when the doctor comes to know about the problem of the human body, जो आदमी चेकअप कराने के लिए गया है, उसके बाद what does the doctor does? दवाई देता है. So poverty का जब हमको पता चल गया कारण क्या है, then what we will be doing, there would be the different measures that would be taken to eradicate poverty. Poverty को हटाने के लिए क्या क्या करना है, we need to understand. So it is anti-poverty measures. Poverty needs to be removed. तो इस poverty को हटाने के लिए whatever steps needs to be taken, it has to be taken care of. उसको ठीक से करना ही करना है. And we will be also discussing about the official concept of poverty. Officially, how do we assess poverty? What are the government steps to remove poverty and how is it assessed? We need to understand that also. अभी क्या होता है रोज की जिंदगी में, इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जो कि हमको लगता है बेचारे गरीब हैं. The first ones that if I give the example, the people who are coming to work in your house, आपके घर में जो लोग काम करने आते हैं, of course they are coming and working in your house, तो कुछ तो उनकी मजबूरी होगी, some problem might be there, पैसे की problem है, they need to solve those problem. तो the first poor people that you interact with is the people who are coming, and they are coming from overcrowded parts of the cities. See, ठीक है? Try to understand overcrowded parts in the big cities. It is called as jhuggi. I mean, it is the local terminology that is used to understand the concept of poverty. The people who are living in these areas. इसमें कौन कौन से लोग रहते हैं? डेली वेज वर्कर्स आर देयर, स्पेशली कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो लोग काम करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है ना, स्पेशली इन द बिग सिटीज, द कंस्ट्रक्शन वर्क दैट हैपेंस इन द बिग सिटीज, पीपल स्टे इन दीज झुग्गीज. ये ऐसी झुग्गी में रहते हैं जहां पे कि द लिविंग कंडीशंस आर नॉट वेरी हेल्दी. बहुत अच्छा लिविंग कंडीशन तो नहीं होता है, बट स्टिल रहने के लिए जो भी जगह मिल रही है, एंड स्पेशली मुंबई, दिल्ली, वहां पे तो स्टेइंग एंड प्रोक्योरिंग अ हाउस इज अ बिग थिंग. हार्डली लोग ऐसे होते हैं जिनको कि आराम से रहने की जगह मिल जाती है. गॉट इट? So construction sites are there, people are working in these construction sites, child workers are there who are working in the dhabas. छोटे छोटे बच्चे आपको ढाबे पे काम करते हुए नजर आ जाएंगे. Once I was discussing with you only, so where one of the students said ना कि मैम ये child labor को अगर हटा दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम है. Child labor को हटाना तो is very important, that is there.
then bigger beggars are there, and the children who are living, ये तो झुग्गीज में भी, इनके पास तो झोपड़ी भी नहीं होती. What do? They have a temporary arrangement, कहीं से कुछ कागज की पन्नी वन्नी लाके और 2 डंडा लगा के उसके अंदर रहते हैं. तो conditions are very bad. We see poverty all around. It is said, and that is true, that every 4th person in India, ठीक है, every 4th person in India is a poor person. ठीक है, गरीब आदमी है. तो 270 million, or you can say 27 crore of people leave BPL. 27 crore are BPL. Now what is BPL? Yes, you know it very well, below poverty line. 27 crore people. This is the data of 2011-12. Please understand, this is the data of 2011-12. 10 साल पहले का डेटा है. अभी हो सकता है नंबर्स बदल गए हों. आई वुड डेफिनेटली लाइक यू टू वंस गो थ्रू दिस. इसको थोड़ा सा पता करके प्लीज डिस्कस इट विद मी ऑन द ऑनलाइन सेशंस. ऑनलाइन सेशन जब होते हैं तो आप मुझे बताना अभी पॉवर्टी लेवल क्या है लोगों का. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पुअर्स इन द वर्ल्ड इंडिया में बहुत ज्यादा है. तो इट इज अ सीरियस थिंग एंड इट इज अ बिग चैलेंज दैट द इंडियन गवर्नमेंट फेसेस. 2 केसेस ऑफ पॉवर्टी वी विल बी डिस्कसिंग. हम अभी क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स. इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना, इकोनॉमिक्स हम ऐसे नहीं समझ सकते. वी कुडंट अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स बिकॉज इट इज अ लाइव साइंस. इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग. इट इज इन द सोसाइटी, जो कि हमको लोगों के साथ, लोगों के बीच में उनके एग्जाम्पल के थ्रू ही समझना पड़ेगा. वी नीड टू अंडरस्टैंड इट थ्रू देयर एग्जाम्पल. दैट्स वाई वी विल बी डिस्कसिंग इट थ्रू एग्जाम्पल. 2 टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी. अर्बन केस में क्या है, अभी 2 केसेस ऑफ पॉवर्टी व्हेन वी आर डिस्कसिंग. तो पहले हम शहर का एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. शहर में वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ फैमिली. 33 ईयर ओल्ड एक बंदा है, क्या नाम है उसका, रामशरण. ही इज 33 ईयर ओल्ड. 33 साल का एक बंदा है. ओके. And what is the work he is doing? He is a daily wage laborer. हाँ, रोज काम करता है and at the end of the day he is being paid daily wage laborer. कहाँ पे है? Wheat flour mill in near रांची. ठीक है, रांची के पास एक आटे की मतलब व्हीट फ्लोर, एक आटे का मिल है जहाँ पे कि मतलब गेहूं लाते हैं और सॉरी चिल्ड्रन, आटे की बोनियां बना बना के बेचते हैं. ये आशीर्वाद एंड ऑल, व्हाट इज दैट, कहीं ना कहीं तो बनता ही होगा. सो द व्हीट इज प्रोक्योर्ड एंड इट इज इन, ही इज वर्किंग इन द व्हीट फ्लोर मिल. वर्किंग इन द व्हीट फ्लोर मिल. ठीक है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हीट फ्लावर दैट इज बीइंग मेड हियर इज गोइंग टू मेनी प्लेसेस, लेकिन ही इज अ डेली वेज लेबरर. रोज जितना वो काम करेगा दिन भर, एट द एंड ऑफ द डे ही वुड बी पेड फॉर वॉट एवर वर्क ही हैज डन. ही इज अर्निंग हाउ मच? 1500 पर मंथ. एक महीने में इसकी अर्निंग क्या है? ₹1500. बेटा 1500. हम एक दिन में 1500 रुपए उड़ा देते हैं. नाउ दिस person is working for the whole month and he is earning 1500 rupees. So you can understand the poverty case here. You can understand the level of poverty. And कभी कभी क्या काम मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है. So the money that he is earning, he cannot sustain his family. कितने members हैं इसकी family में? There are 6 members in the family. 6 members are there in the family. इसमें he has got his wife and 4 children aged between 12 to 6 months. सबसे बड़ा वाला 12 साल का है, सबसे छोटा वाला 6 महीने का है, और 4 बच्चे हैं. अर्निंग 1500 है. So you can understand the poverty situation is at what level. कितने हाई लेवल की पॉवर्टी है इस फैमिली में. And apart from that, 6 people are there who are staying in the city, dependent on his 1500 rupees. उसमें भी he has to send some money to his parents. Imagine, कुछ पैसे इसको जो है he has to send some money to village where his father is living.
and he is living in a village near Ramgarh. ठीक है, he has his native town. 6 members are there in the family. Native town कहाँ पे है? रामगढ़. Okay. Now, and his father a landless laborer. फादर जो है वो भी लेबरर है. He is a landless laborer, मतलब किसी और की जमीन पे काम करते हैं, अपनी जमीन पे नहीं काम करते हैं. तो लैंडलेस लेबरर डिपेंड्स ऑन रामशरण एंड हिज ब्रदर इज ऑल्सो देयर. रामशरण का जो भाई है, ही लिव्स इन हजारीबाग. ठीक है, दिस आर ऑल द प्लेसेस इन झारखंड. तो रांची के पास मिल में ही इज वर्किंग. हिज ब्रदर इज स्टेइंग इन हजारीबाग. रामशरण जो है शहर में रह रहा है. ही हैज रेंटेड अ 1 रूम हाउस. एक कमरे का घर इस बंदे ने किराए पे लिया हुआ है. अभी देखो, नाउ जस्ट सी द रियल प्रॉब्लम. एंड इट इज अ क्राउडेड बस्ती. बहुत भीड़ है जहां पे वो रह रहा है. एंड दैट टू आउटसाइड द सिटी. बहुत झुग्गी है. टेम्परेरी, इट इज अ टेम्परेरी शैक. वही लकड़ी वकड़ी लगा के, थोड़ी बहुत ईंट रख के और चारों तरफ से घेर के, उस तरह के घर में ये रह रहा है. क्राउडेड बस्ती इन द आउटस्कर्ट्स. एंड टेम्परेरी शैक बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स. थोड़ी बहुत ईंटें कहीं से, आई टोल्ड यू ना, थोड़ी बहुत ईंटें मिल गई होंगी. तो ब्रिक्स आर देयर एंड क्ले, मट्टी का जो है वो टाइल्स बना हुआ है, छोटी छोटी ईंटें होंगी. तो दैट इज द कंडीशन ही इज लिविंग इन. हिज वाइफ, father is in Ramgarh. Now, wife is Shanta Devi. शांता देवी क्या काम कर रही हैं? ऑफ कोर्स 1500 रुपीज में तो घर नहीं चलेगा. यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. सो शी इज वर्किंग एज अ मेड इन द फ्यू हाउसेस. आसपास के घरों में काम पकड़ा हुआ है. एंड शी इज मैनेजिंग टू अर्न अनदर रुपीज 800. 800 रुपए उसको मिल रहे हैं. एंड जस्ट बहुत मुश्किल से फॉर अ मंथ शी इज गेटिंग 800. तो 1500 प्लस 800, यू कैन अंडरस्टैंड कितने पैसे हुए. तो इट इज 2300 रुपीज में दे आर कैरिंग ऑन देयर लाइफ फॉर द होल मंथ. दे आर जस्ट एबल टू मैनेज अ मियागर दाल एंड चावल. It is mentioned in the book, a dal and a rice twice a day. 2 टाइम दिन भर में वो उनको इतना ही खाना मिल रहा है. So you can understand how deplorable the condition is. And इतना भी obviously 6 people are there, सबको पेट भर के खाना नहीं मिल रहा होगा. तो his elder son, what is he doing? जो सबसे बड़ा वाला बेटा है, he is also working as a helper in a tea shop. चाय की दुकान पे वो भी काम करता है. Are you getting my point, children? Try to understand that he is also working in a tea shop and another rupees 300 he is earning. मतलब अभी यहाँ पे एक चीज और जो देने वाली है, शांता देवी is the wife and son working in tea shop. ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ. It is just to make you understand. Please try to understand. टी शॉप में. And new ones who are there, they have only 2 and none of the children go to the school. His 10-year-old daughter is there. 12 साल का बेटा है, चाय की दुकान पे काम कर रहा है. 10 साल की बेटी है, वो बच्चों को संभाल रही है. बाकी के जो दोस्त के भाई बहन हैं, they have only 2 pairs of hand me down clothes. फटे पुराने कपड़े. न्यू वंस आर बॉट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लोथ्स बिकम अनवेयरेबल. मतलब पुराना कपड़ा एकदम फट के वो हो गया है कि पूरा बदन अंदर से दिख रहा है, तभी नए कपड़े खरीदे जाते हैं. अदरवाइज न्यू क्लोथ इज लाइक अ लग्जरी फॉर देम. शूज आर लग्जरी फॉर देम. जूता तो वो सोच ही नहीं सकते. दे कुड नॉट थिंक ऑफ शूज. तो यंगर किड्स आर अंडर नरिश्ड. छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक से उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक से खाना तक नहीं मिल रहा है. तो दे आर अंडर नरिश्ड. बहुत दुबले पतले हैं, हमेशा बीमार रहते हैं. तो हेल्थ केयर इनका नहीं है. व्हेन दे फॉल इल, जब बीमार पड़ रहे हैं उस समय उनके पास हेल्थ केयर भी नहीं है. लुक एट द कंडीशन ऑफ द फैमिली ऑफ रामशरण. कितनी बुरी कंडीशन है. खुद 1500 रुपए कमा रहा है, 6 लोगों की फैमिली है, पिताजी को भी कुछ पैसे भेजने हैं, भाई है वो हजारीबाग में भी काम कर रहा है. भाई भी कितना कमा रहा होगा,
इफ ही इज अर्निंग 1500 तो कितना कमा रहा होगा. वाइफ इज ऑल्सो वर्किंग, गोइंग इन द हाउसेस टू वर्क. बेटा भी चाय की दुकान पे काम कर रहा है. So this is one condition of Ram Charan that we have assessed just now. Isn't it, children? दूसरा कंडीशन क्या है वो भी देख लेते हैं. So students, we have started this chapter, poverty as a challenge, and we have already discussed about poverty, the condition of poverty in India, not very good, really bad. In fact, many people are yearning for their basic needs, मतलब तरस रहे हैं, 2 टाइम खाने के लिए परेशान हो रहे हैं. तो दिस इज़ व्हाट पॉवर्टी इज़ ऑल अबाउट. यही है वो गरीबी जिसने लोगों को बहुत परेशान करके रखा हुआ है. तो हाउ इट हैज़ हैपेंड, I have already given you an introduction just now. People are not in a very good condition, and this poverty has led them to a situation where the economic development of the country is hampered, and the social development also. पूछो कैसे? Social development in a sense, a person, remember last chapter हमने क्या पढ़ा है? What did we study in the last chapter? People as resource. When we are talking about that, कि people would be serving as a resource. When they are working as resource, when they are talking about resource, तो क्या हम the people who are poverty stricken, जो इतने गरीब लोग हैं, क्या उनके लिए हम उनके लिए डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं? कैन वी टॉक अबाउट देम एज डेवलपमेंट? कैन वी टेल कि yes, these people who are poverty stricken will help in the development of the country? Some questions are there, children, which is unanswerable. इसका इन सवालों के जवाब मिलना बहुत मुश्किल है. ठीक है, इसको हमको समझना पड़ेगा. अभी देखो, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैलेंज जो है इंडिपेंडेंट इंडिया में, यू नो इट वेरी वेल, इट इज़ वेरी क्लियरली मेंशन्ड हियर, इट्स पॉवर्टी. तो ये आफ्टर डिस्कसिंग दिस प्रॉब्लम, वी हैव ऑलरेडी नोन अबाउट द प्रॉब्लम थ्रू एग्जाम्पल्स. We will be understanding the poverty trends in India. कैसे, कौन लोग हैं जो गरीब होते हैं, क्यों गरीब होते हैं, उनकी गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है, हाउ इट वुड बी सॉल्व्ड. तो कॉजेज हम पहले डिस्कस करेंगे. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कॉजेज एंड देन द एंटी पॉवर्टी मेजर्स, कि इनकी गरीबी को हटाने के लिए क्या क्या तरीका अपनाया जा सकता है. What all anti-poverty ideas can be involved, can be applied, that is what we will be studying. तो चैप्टर में सबसे लास्ट में आप क्या दिखेगा? द ऑफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी. Official concept na, because government when it starts thinking about something, it becomes official. Government has always been thinking about it. कौन चाहेगा कि उनके देश के, कौन सी गवर्नमेंट चाहेगी कि उनके देश के लोग गरीब रहें? बट देन खाली चाहने या नहीं चाहने से नहीं होता है ना. वी नीड टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा. तो दैट्स वाई दिस हैज़ टू बी डिस्कस्ड. जैसे डेली लाइफ में क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं जिनको कि हम गरीब सोचते हैं. आई गिव यू द एग्जाम्पल, द पीपल हु आर कमिंग टू वर्क इन आवर हाउसेज, जो हमारे घर में काम करने के लिए आते हैं, सबसे पहले तो वही पुअर हैं. एंड कोई भी हो सकता है, लैंडलेस लेबरर्स हो सकते हैं विलेज में, एंड देन द ओवर क्राउडेड झुग्गीज इन द सिटी. बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला जो झुग्गी है, झुग्गी मीन्स वेयर पीपल आर लिविंग इन अ वेरी बैड कंडीशन, बहुत बुरे हालात में जहाँ पे लोग रह रहे हैं, दैट इज़ अ झुग्गी. तो ये झुग्गी की बात हो रही है. इसके बाद डेली वेज वर्कर्स आर देयर, रोज़ जो लोग कमा रहे हैं, पीपल हु आर अर्निंग डेली, एक टाइम का खाना खाने के लिए भी उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. So we are talking about such people, we are discussing about such people. Daily wage workers,
कहाँ कहाँ पे ये डेली वेज वर्कर्स काम करते हैं? देखो, एक तो कंस्ट्रक्शन साइट हो गया, यू कैन सी चाइल्ड वर्कर्स आर देयर, छोटे छोटे बच्चे भी काम कर रहे हैं। जो ये देखो, अभी हमने बताया, डिस्कस वी वर डिस्कसिंग अबाउट चाय वाला, ठीक है, राम शरण का बेटा कहाँ काम कर रहा है, वी वर टॉकिंग अबाउट इट। ये देखो चाय का है। अनमोल, यू केम सो लेट, भैया हैज़ गॉन फॉर वर्क विदाउट फूड। एक मदर है, शी इज़ लुकिंग आफ्टर द किड्स एंड देन ये काम करने वाली को वो बोल रही है कि आप देर से आए हो, अपने बच्चों को वो देखभाल कर रही है एंड ये काम भी कर रही है, बातें भी सुन रही है। तो कंडीशन इज़ बैड। अभी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बेगर्स, चिल्ड्रन इन टैटर्स, टैटर्स मीन्स फटे पुराने कपड़े, बिल्कुल, द पीपल, द चिल्ड्रन हु आर वेरी बैड क्लोथ्स। तो पॉवर्टी वी फाइंड ऑल अराउंड अस, हमारी चारों तरफ गरीबी है। एवरी फोर्थ पर्सन, हर चौथा आदमी जो है इंडिया में वो पुअर है, गरीब है। एंड 270 मिलियन पीपल आर देयर, और 27 करोड़ यू कैन से हु लिव इन पॉवर्टी, पूरी तरह से जो गरीबी में दिन बिता रहे हैं। दिस इज़ द डेटा ऑफ 2011-12, इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा गरीब इंडिया में मिलते हैं। इससे यही that so many poor people are available in India and the seriousness of the challenge बहुत बड़ा है। So we are taking the example हमने पढ़ा, example हमने समझने की भी कोशिश की, that two typical cases of poverty, दो केस हैं यहाँ पे पॉवर्टी, गरीबी का। एक तो शहर में, पहले शहर में देख लेते हैं। हमने राम शरण के बारे में बात की थी, जस्ट सी द एग्जाम्पल हियर, इट इज़ मेंशन अबाउट राम शरण। डेली वेज लेबरर है, व्हीट फ्लोर मिल में काम कर रहा है रांची में, झारखंड के पास, एंड 1500 रुपीज़ पर मंथ कमा रहा है। एम्प्लॉयमेंट उसको मिलती है, विच इज़ कभी कभी मिल जाती है, एंड ही फाइंड्स एम्प्लॉयमेंट विच इज़ नॉट ऑफन, हमेशा उसको काम भी नहीं मिलता है, ये भी प्रॉब्लम है। सो इतना जो पैसा है उसके पास, इट इज़ नॉट एनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ 6, 6 लोगों का परिवार चलाने के लिए इतना पैसा काफ़ी नहीं है। उसमें भी उसकी वाइफ है, 4 बच्चे हैं, 12 ईयर्स टू 6 मंथ्स। सबसे बड़ा वाला 12 साल का है, सबसे छोटा वाला 6 महीने का है। तो अपने गरीब माँ बाप को इसको घर में पैसे भेजने पड़ते हैं। मतलब सोचो, 6 बच्चों का, 6 पीपल फैमिली इज़ देयर, उनको तो वो पाल ही रहा है, साथ में उसको ही हैज़ टू सेंड मनी टू हिज ओल्ड पेरेंट्स, जो कि विलेज में रहते हैं नियर रामगढ़। तो फादर क्या है, लेबरर। फादर के पास भी जो फादर जहाँ पे काम करने जा रहे हैं वहाँ पे लैंड नहीं, लैंडलेस लेबरर हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन राम शरण। राम शरण के ऊपर इनकी भी पूरी ज़िंदगी है। इमेजिन ही हैज़ टू लुक आफ्टर हिज फादर ऑल्सो। तो 1 रूम रेंटेड हाउस में 6 लोगों का परिवार कैसे रह रहा होगा, ये भी सोचने वाली बात है। राम शरण इज़ लिविंग हियर, ठीक है, विथ सच अ बिग फैमिली, and Shanta Devi is working as part-time maid, and elder son is in the tea shop, चाय की दुकान पे काम कर रहा है वो। वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट इट। सो 10-year-old डॉटर जो है वो छोटे छोटे भाई बहनों का ख्याल रखती है। कोई भी बच्चा यहाँ स्कूल, ठीक है, दे हैव ओनली 2 पेयर्स ऑफ हैंड मी डाउन क्लोथ्स ईच। मतलब हैंड मी डाउन क्लोथ्स मतलब कि बड़े का कपड़ा छोटा हो गया तो वो फिर छोटे वाले भाई बहन को चला गया। नया वाला कपड़ा तभी आता है व्हेन द ओल्ड क्लोथ्स बिकम अनवेयरेबल, पुराने कपड़े पहन ही नहीं सकते आप। तो शूज़ जो है वो लग्जरी है, यंगर किड्स आर अंडर नरिश्ड, यू कैन सी द कंडीशन ऑफ द फैमिली सो बैड, नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल। सो दिस वे नाउ जस्ट सी रूरल केस। रूरल केस में हम किसके बारे में बातें करेंगे, लाखा के बारे में। अभी आई हैव नॉट डिस्कस्ड इट, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिकैप ऑफ द कंडीशन इन द विलेज। लाखा सिंह, ठीक है, छोटा से गांव में रहता है मेरठ के पास,
एंड फैमिली है, डजेंट ओन एनी, इसके पास कोई ज़मीन नहीं है. सो दे डू ऑड जॉब्स. ऑड जॉब्स मतलब विच इज़ नॉट वेरी गुड. अलग तरीके का काम करते हैं जो कि उनकी फैमिली के लिए नहीं मेंट है, विच इज़ नॉट मेंट फॉर देयर फैमिली, बट स्टिल दे डू दैट जॉब फॉर द बिग फार्मर्स. Work is erratic and so is income. Erratic means regular income is not there. बहुत मतलब बहुत परेशान करने वाला काम है, और उसी तरह से इनकम भी बहुत परेशान कर रहा है, वेयर ही दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर इनकम. तो क्या होता है, कभी कभी 50 रुपए ही मिलते हैं, पूरे दिन काम करके सिर्फ 50 रुपए. कभी व्हाट हैपन्स कि इट्स इन काइंड लाइक अ फ्यू किलोग्राम ऑफ वीट और दाल. लोगों ने काम करवा दिया, पैसे नहीं दिए, गेहूं दे दिया और दाल दे दिया, चावल दे दिया और इवन वेजिटेबल्स. तो थ्रू द डे पूरा क्या होता है, हमेशा कैश इज़ नॉट गिवन, समटाइम्स इट इज़ पेड इन काइंड. काइंड का मतलब होता है सामान देना. कैश का मतलब तो कैश हो गया, पैसे में पेमेंट हो रही है, बट समटाइम्स दे आर गेटिंग इन काइंड मीन्स दे आर गेटिंग सम थिंग्स. जैसे कुछ गेहूं मिल गया, कुछ दाल मिल गया, कभी कभी वेजिटेबल मिल गई. एंड कैसे मिलता है, होल डे दे आर वर्किंग, पूरे दिन काम करने के बाद इतना सामान मिल रहा है. तो 2 शाम का खाना भी नहीं मिल रहा है. द फैमिली ऑफ 8 लोग हैं, दे आर नॉट गेटिंग अ 2 स्क्वायर मील्स ऑल्सो. तो लाखा लिव्स इन कच्चा हट, घर इसका कच्चा है, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज. मतलब जो उसका गांव है, गांव के बाहर वो रह रहा है कच्चे वाले घर में. एंड विमेन ऑफ द फैमिली, द औरतें जो हैं, स्पेंड द डे चॉपिंग फॉडर, मतलब गाय भैंस के लिए चारा. चॉपिंग फॉडर, वो काटना, घास लेके आते हैं ना, बड़ी बड़ी घास होती है, उसको छोटे छोटा काटना पड़ता है. एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड्स, लकड़ियाँ कलेक्ट करने जाती हैं. खाना भी, गैस नहीं है ना, गैस भी नहीं है इनके यहाँ. तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ डेप्लोरेबल द कंडीशन इज. पर पिताजी का क्या है, हिज फादर इज अ टीबी पेशेंट, पास्ट अवे 2 years अगो, गुजर गए. एंड क्यों, वाई, बिकॉज टीबी इज सच अ मेडिकेशन. नियम से अगर आपको दवाई नहीं मिली तो मौत निश्चित है, इट्स डेफिनेट टू डाई. सो मदर इज़ नाउ सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज़, उसी तरह की बीमारी माँ को भी हो गई है. एंड शी इज़ ऑल्सो स्लोली ईबिंग अवे, मतलब धीरे धीरे मर रही है. सिंपल लैंग्वेज में व्हेन आई एक्सप्लेन, स्लोली ईबिंग अवे. तो विलेज में एक प्राइमरी स्कूल है, क्लास 1 to 5. लाखा जो है कभी वहाँ नहीं गया है. ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग, मतलब पैसा कमाना उसने कब से शुरू किया, व्हेन ही वॉज 10 years old. 10 साल का बच्चा, सोचो, काम करना शुरू कर दिया है. न्यू क्लोथ्स हैपन वंस इन फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में एक बार नया कपड़ा मिलता है. साबुन भी नहीं है, तेल भी नहीं है. साबुन, सोप एंड ऑयल इज लग्जरी फॉर द फैमिली. मतलब होली हुई, दिवाली हुई, तो उसमें इनको ये साबुन का और तेल का ये मिलेगा. इमेजिन द फैमिली इज इन अ वेरी बैड कंडीशन, इजंट इट? So now when यहाँ पे when we study the above cases of poverty, now we understand the major causes of poverty. Landlessness, unemployment, size of families, illiteracy, सारी चीज़ें मिलके प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं. पुअर हेल्थ, मैल न्यूट्रिशन, चाइल्ड लेबर, हेल्पलेसनेस, मतलब कि ज़मीन भी नहीं है, मदद भी कहीं से नहीं मिल रही है, चाइल्ड लेबर हो रहा है, हेल्थ ऑलरेडी ख़राब है, माल न्यूट्रिशन, मतलब ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा है. तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ दिस पॉवर्टी. इस गरीबी का मेन कारण क्या है, आप ये समझो. एंड यू नीड टू कंपेयर दीज 2 सिचुएशंस. ये 2 सिचुएशंस को आपको कंपेयर करना है. हु आर दीज पीपल? वन इज लाखा एंड द अदर इज रामशरण. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सिचुएशन ऑफ लाखा एंड रामशरण नीड्स टू बी कंपेयर्ड.
गॉट इट? इसको अगर कंपेयर नहीं करेंगे, इफ़ वी डोंट कंपेयर इट, तो वी विल नॉट अंडरस्टैंड द कंडीशन इन द अर्बन एरियाज एंड कंडीशन इन द रूरल एरियाज. गांव में लोग कैसे रह रहे हैं, शहरों में लोग कैसे रह रहे हैं, ये समझ पाना, मतलब गरीब लोग, हाउ आर द पुअर पीपल स्टेइंग इन टाउन्स एंड द सिटीज, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो प्लीज डू अ कंपैरिजन. We'll continue in the next video. Okay, children? Thank you so much.